Okay, dear students, let us move forward and solve a numerical based on the concepts which we learned on spur gear. Right? So we have discussed the all formulas which we require for solving the numericals of spur gear, and let us see some numericals based on those formulas or based on those theoretical concepts which we studied through a PowerPoint presentation. Okay. So the problem says a pair of spur gear having, so there are two gears, right? A pair of spur gear, one gear and say another gear. Right? A pair of spur gear having 40 and 20 teeth. There are 40 teeth and 20 teeth respectively. Now, if two gears are meshing and if the numerical says that there are 20 teeth and 40 teeth, that means the smaller gear, that is the pinion, will be having 20 teeth, and the larger gear, that is the gear wheel, might be having 40 teeth. Right? So we can say that number of teeth on pinion TP is given and it is equal to 20 teeth. Also, number of teeth on gear TG is given and it is equal to 40. Now, we are also, if we know that TP and TG are given, that means we are having velocity ratio. Right? Okay. Let us find out some more data. Okay. The pair of square gears having 40 and 20 teeth respectively are rotating in mesh. They are meshing. Okay. The speed of the smaller being 2000 rpm. Now the speed of the smaller, that means the pinion. You know that when two gears are meshing with each other, that means the smaller gear is always termed as pinion. So this gear is pinion, and the speed of pinion NP. Let us say that the pinion is having some speed NT, and it is given that the speed of the pinion is 2000 rpm. Let me check whether it is 2000 or it is 200. There might be okay, it is 2000 rpm. Right? So the given data is the speed of the smaller gear, that is the pinion, is 2000 rpm. Now, moving forward, determine the velocity of sliding between the point of engagement. So we have to find out the velocity of sliding at point of engagement, at pitch point, and point of disengagement. And now we know that velocity of sliding is nothing but omega p, that is angular velocity of pinion, plus omega g, that is angular velocity of gear, into some distance, and that distance is distance of point of engagement from the pitch point, distance of point of disengagement from the pitch point, or the distance of pitch point from the pitch point. And when we are calculating the point of engagement, that means point of engagement to pitch point distance, that is the length of path of approach. At the point of disengagement, it will be into length of path of recess. Right? That means we have to find out length of path of approach and path of recess individually. Right? Okay. So that is all we have to do. Assume some data is given. Assume phi. Now the question angle phi is given. Phi is 20 degree. Okay. Addendum length of 5 mm. Addendum length, can I say that addendum length is represented by small a and it is given as 5 mm, and module of 5 mm. Again, addendum and module m is also given as 5 mm. So length of addendum and length of module is given. Okay. So this data is given. We have to find out. So the problem continues. Also find the angle through which the pinion turns while any pair of teeth are in contact. That is the angle turned when during the engagement. That is somewhat similar to the problem which we solved in previous lecture. Right? So here what is, let us move forward. So this we have to find out this data. And it says that we will require path of approach, we will require path of recess, and for finding those data, we need the pitch circle radiuses
and the addendum circle radiuses. Right now we know that path of approach so let me write it out so that we can give you let me go or say that we know that first thing, path of approach and this path of approach is under root of RA square minus of R square cos square phi minus of R sin phi. This is path of approach. Okay? So path of approach is RA square minus of R square cos square phi minus of R sin phi. We will require where RA is addendum circle radius for the larger wheel, that is gear, right? We saw that we are having a larger wheel and a smaller wheel. Gear wheel, this RA represents the addendum circle radius for gear, right? And that is nothing but pitch circle radius R plus this addendum length A, right? Where R is pitch circle radius, R में अगर हम A ले this addendum, है ना, हमें A दिया हुआ है, इस addendum length को जब हम pitch circle radius R में ऐड करेंगे तो हमें RA मिलेगा, राइट? मतलब क्या हमें पहले RA डिटरमाइन करना पड़ेगा या फिर R भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब इस बात को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ देखो हमें दिया है मॉड्यूल M, है ना, हमें दिया है मॉड्यूल। क्या मैं कह सकता हूँ कि मॉड्यूल M जो है दैट इज इक्वल टू मॉड्यूल M का हमें फॉर्मूला मालूम है, मॉड्यूल M इज D/T होता है, राइट? मॉड्यूल M D/T होता है, फॉर पिनियन P/TP हो जाएगा, फॉर गियर DG/TG हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं, मॉड्यूल हमें दिया है 5 mm, डायमीटर ऑफ पिनियन हमारे पास है नहीं, उसे हम रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं। डायमीटर ऑफ पिनियन इज 2 टाइम्स पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन तो 20 हमें दिया हुआ है, राइट ना, और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन नंबर ऑफ डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ, अच्छा इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू V के लिए, दैट इज बड़े वाले लार्जर गियर के लिए डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर इज 2 टाइम्स पिच सर्कल रेडियस अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टीथ हमें दिया है 40। अब इस बात को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पिनियन का रेडियस मिलेगा। पिनियन का रेडियस कितना मिलेगा भाई? 2500 और ये 50 mm, 50 mm मिलता है, बराबर। अब अगर हम रेडियस का फाइंड आउट करें, पिच सर्कल रेडियस गियर के लिए फाइंड आउट करें तो 2 और ये 20 हमें R कितना मिलेगा भाई? कैपिटल R इक्वल्स टू यहाँ 20 25 का 100 mm, राइट? R में मिल जाएगा 100 mm, राइट? अच्छा भाई, स्मॉल r मतलब कि पिनियन का पिच सर्कल रेडियस, कैपिटल R मतलब कि गियर का पिच सर्कल रेडियस, ये बातें तो हमें मिल चुकी है। अब RA जो है, अगर आपने पिछले वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा। जो RA है दैट RA इज नथिंग बट R प्लस अडेंडम, है ना। R हमें मिला है 100 प्लस अडेंडम की लेंथ है 5 mm 5 mm, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 105 mm, राइट? और सिमिलरली पिनियन का पिच सर्कल रेडियस R है, जो RA होगा अडेंडम सर्कल का रेडियस होगा वो होगा R प्लस ऑफ अडेंडम, मतलब कि वो वैल्यू मिलेगी हमें 55 mm। तो हमें बहुत कुछ मिल चुका है जो हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे पाथ ऑफ अप्रोच। हमारे पास पाथ ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस ऑफ r sin phi। हमें टर्मिनोलॉजी मालूम है, r को मतलब कि गियर का अडेंडम सर्कल रेडियस, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 105, वैल्यू पुट करके चलेंगे, चलेगा। तो RA की वैल्यू 105 का स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर मतलब कि कहाँ है भाई? R स्क्वायर, ये R है ना, पिच सर्कल रेडियस, RA नहीं है R है, तो R कितना है मेरा? हमें 100 का स्क्वायर cos स्क्वायर phi क्या है? प्रेशर एंगल हमें दिया है, phi इज 20 डिग्री, हम पुट कर देंगे भाई 20 डिग्री है
माइनस ऑफ आर कितना है भाई 100 साइन ऑफ 5 इज 20 डिग्री हमें दिया है, राइट। इस वैल्यू को कैलसी में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाथ ऑफ अप्रोच, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और अंडर रूट के बाहर है आर साइन ऑफ 5, राइट, जो कि हमें देगा पाथ ऑफ अप्रोच। और पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है 12.65 mm। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेशन के बाद आती है वो आती है 12.65 mm। हमें जो पाथ ऑफ अप्रोच चाहिए था वो पाथ ऑफ अप्रोच मिल चुका है 12.65 mm। अच्छा भाई, पाथ ऑफ अप्रोच चाहिए था, पाथ ऑफ अप्रोच मिल चुका है। बात करते हैं पाथ ऑफ रिसेस की। पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ अप्रोच के लिए हमने लार्जर व्हील के डायमेंशंस यूज किए, पाथ ऑफ रिसेस के लिए हम स्मॉलर व्हील मतलब कि बीम के डायमेंशंस यूज करेंगे। तो पाथ ऑफ रिसेस जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ स्मॉल आर साइन ऑफ 5। ये तो हमारा पाथ ऑफ रिसेस का फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर ए स्क्वायर, आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कितना है भाई 55 mm, 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ आर एक सर्कल रेडियस फॉर पीएल वो तो हमने फाइंड आउट किया है आर तो कितना है भाई 50 mm, 50 mm। सब वैल्यू हम mm में पुट करें तो इसीलिए हमारा आंसर भी mm में आया है, राइट। ये बात आप याद रखते रहिए, ध्यान में रखिए। ओके, cos स्क्वायर 5 मतलब कि cos स्क्वायर प्रेशर अगर हमें दिया है 20 अंडर रूट के बाहर माइनस ऑफ आर कितना है भाई 50 साइन ऑफ 5 मतलब साइन ऑफ 20, राइट। तो यहाँ से मिलेगा हमें पाथ ऑफ रिसेस। और पाथ ऑफ रिसेस जब आप कैलसी पर कैलकुलेट करोगे तो रिमेंबर अंडर रूट के अंदर कुछ है, अंडर रूट के बाहर कुछ है, तो आप ब्रैकेट वगैरह अच्छे से यूज कीजिए, राइट। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा पाथ ऑफ रिसेस और पाथ ऑफ रिसेस की वैल्यू मिलती है 11.5 mm, 11.5 mm, राइट। इसे भी हमें डब्बा कर देंगे और यहाँ याद रखेंगे कि भाई 12.65 पाथ ऑफ अप्रोच है, 11.5 mm पाथ ऑफ रिसेस है। पाथ ऑफ अप्रोच है और पाथ ऑफ रिसेस है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। इनकी कोई जरूरत नहीं है कि आपने इसे रब कर तो चलेगा, यहाँ रब कर देता हूँ। और थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है तो 12.65। अच्छा भाई, इस बात को मैं अलग लिख लेता हूँ। पाथ ऑफ अप्रोच जो है वो हमें 12.65 mm मिला है। पाथ ऑफ रिसेस जो है वो हमें 11.5 mm मिला है। ये डेटा हम इंक्लूड कर देते हैं और ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट मैं इसे रब कर देता हूँ। कोई शक? बिल्कुल। तो आगे देखिए, अच्छा भाई, सिंस मैं बोर्ड पे फर्स्ट वीडियो ऐसे बोर्ड पे अपने चॉक पेन इस मेथड से कर रहा हूँ तो बार बार चेक करना पड़ रहा है कि वेदर एवरीथिंग इज गोइंग ऑलराइट। अच्छा भाई, तो हमें पाथ ऑफ अप्रोच मिल गया, पाथ ऑफ रिसेस मिल गया। हमें चाहिए ओमेगा p और ओमेगा g स्पीड। पाथ तो स्पीड वाली है, अब स्पीड कहाँ से निकालेंगे? तो हमें गियर रेशियो मिला है। अब हमने पहले देखा है कि वेलोसिटी रेशियो का कुछ जो वेलोसिटी रेशियो है इसका कुछ रिलेशन होता है। VR वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में अगर मैं उसे TG/TP कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड के टर्म्स में वो क्या हो जाएगा NP/NG हो जाएगा, है ना। सिर्फ हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है इसलिए इस डेटा को मैं यूज कर रहा हूँ। अभी ये रिलेशन मालूम है, वेलोसिटी रेशियो TG/TP इक्वल्स टू NP/NG, राइट। ये जो ये हमारा ये रेशियो है, ये वेलोसिटी रेशियो स्पीड रेशियो, राइट। और यही रिलेशन आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो ओमेगा p/ओमेगा
जी भी तो हो जाएगा, है ना, ओमेगा पी बाय ओमेगा जी भी हो जाएगा। और इसी रिलेशन को हम अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो डी जी बाय डी पी होगा, है ना। रिलेशन देखिए, ऊपर नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में ऊपर गियर है तो नीचे पिनियन है, स्पीड के टर्म्स में ऊपर पिनियन है तो नीचे गियर है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ दोनों सिमिलर जाएंगे और एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड दोनों सिमिलर वे में जाएंगे। इसलिए वेलोसिटी रेशियो का पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, तो हमने पहले फॉर्मूले जब डिस्कस किया है तब उसके अंदर हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। अब वेलोसिटी रेशियो ये रिलेशन होता है, इन दोनों रिलेशन को हम यूज करेंगे। देखो भाई, नंबर ऑफ टीथ गियर हमें दिया है कितना है भाई 40, पुट कर दिया भाई 40। नंबर ऑफ टीथ पिनियन दिया है कितना है 20 डाल दिया। स्पीड ऑफ पिनियन की स्पीड भी हमारे पास है 2000 आरपीएम अपॉन स्पीड ऑफ गियर एनजी। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें कह सकते हैं, हमें एनजी मिल जाएगा, स्पीड ऑफ गियर, गियर से गियर टू कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कितना है 2, यहाँ से 2 4, तो 2000 यहाँ आ जाएगा, स्पीड ऑफ गियर यहाँ लेंगे तो एनजी विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 2 डाल देंगे अपॉन इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लेंगे 4, तो चलिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो निकल चुका है। 4 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 1 जा और ये जो है हमें मिलेगा 1000। तो क्या है, कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ गियर एनजी जो है दैट इज इक्वल टू 1000 आरपीएम। सही है भाई, जो पिनियन की स्पीड है वो 2000 है, तो स्पीड ऑफ गियर पिनियन से कम ही होगी क्योंकि साइज ऑफ गियर तो बड़ी होती है, तो वो हमें 1000 आरपीएम मिल चुका है, राइट। अच्छा भाई, अब हमें लगेगा सामने वाले वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग हमें कैलकुलेट करना है। हमें पाथ ऑफ अप्रोच चाहिए था वो हमने निकाल लिया, पाथ ऑफ रिवर्स चाहिए था वो हमने निकाल लिया, ओमेगा पी और ओमेगा जी का चाहिएगा ना भाई, तो ओमेगा पी पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन क्या मैं कह सकता हूँ कि p इक्वल टू 2 पाई np अपॉन 60, है ना। जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन होगा वो 2 पाई np अपॉन 60 होगा, और इसी बात को हम आगे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 2 पाई np 2 पाई स्पीड ऑफ पिनियन कितना है भाई 2000 अपॉन 60, इसे कैलकुलेट करो और लगे हाथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर भी निकाल दो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ng अपॉन 60। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 60 इक्वल्स टू, दोनों को कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन मिलता है 209.6 5 रेडियन पर सेकेंड, और इस बात को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो मिलता है 104.75 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटीज मिल चुके हैं। अच्छा भाई, ये डेटा हमें चाहिए था, जिस डेटा को हमने निकाल दिया है उसे ड्रॉप करेंगे, उसके पहले जो डेटा हमने निकाला है उसे तरफ लिख लेते हैं। ओमेगा जी हमने निकाला है 104 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा पी भी हमने निकाला है, ओमेगा पी कितना निकाला है भाई 209.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जी और ओमेगा पी निकल चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट तीनों पॉइंट्स पे निकालने के लिए। तो इस बात को हम ड्रॉप करेंगे और चलेंगे कि आगे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट पे निकालेंगे हम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट चॉक हो या मार्कर हो या डस्टर हो, जब तक गिरता नहीं तब तक लेक्चर कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। हुआ क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट लेंगे, पॉइंट ऑफ हट जाओ भैया
पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट। हमें मालूम है एंगेजमेंट के ऊपर क्या होगा भाई, ओमेगा बी, दोनों मेशिंग लेयर्स के एंगुलर वेलोसिटीज ऐड होंगे, ओमेगा बी प्लस ओमेगा जी, और मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर पाथ ऑफ अप्रोच के साथ, पाथ ऑफ अप्रोच के साथ। अब ओमेगा बी हमने कैलकुलेट किया है कितना है, 209.5, ओमेगा बी है 209.5 प्लस ऑफ ओमेगा जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओमेगा जी हमने कैलकुलेट किया है 104.75, और पाथ ऑफ अप्रोच तो हमने वो भी कैलकुलेट किया है क्या, 12.65 mm। इस बात को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट के ऊपर वेलोसिटी मिलेगी इसे कैलकुलेट करने के बाद। सिंस हमने ये सब वैल्यूज एमएम में पुट किया है, ये हमने एमएम में पुट किया है, तो हमें इसका आंसर मिलेगा mm पर सेकंड में, एंड दैट इज इक्वल टू 3975 mm पर सेकेंड। कितना है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट एंगेजमेंट, 3975 mm पर सेकेंड। तो एक आंसर तो हमें चाहिए था, ये आंसर हमें मिल चुका है, इसको हम डबल करके छोड़ेंगे, इसे डबल करने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा भाई बढ़ेंगे आगे और फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट, और जब डिसएंगेजमेंट के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे तो डिसएंगेजमेंट के वक्त फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहां आ जाएगा पाथ ऑफ रेसेस। पाथ ऑफ रेसेस मतलब कि ये वैल्यू, पाथ ऑफ रेसेस की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, कितनी गई, पाथ ऑफ रेसेस की वैल्यू कहां गई, 11.5 mm, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट डिसएंगेजमेंट, और डिसएंगेजमेंट के ऊपर वैल्यू मिलेगी 3614 mm पर सेकेंड। तो हमें जो दूसरी बात फाइंड आउट करनी थी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट, वो भी हमें मिल चुका है। तो इस बात को भी अब हम निकाल देंगे। अच्छा भाई अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पिच पॉइंट, और इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर पिच पॉइंट के ऊपर हमेशा जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है वो 0 होती है, या फिर अगर हम ये देखें तो पाथ ऑफ अप्रोच जो है वो पिच पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर है, मतलब कि हम डिस्टेंस ले रहे हैं पिच पॉइंट से पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर। पाथ ऑफ रेसेस मतलब कि पिच पॉइंट से डिसएंगेजमेंट तक का डिस्टेंस है। अब अगर हम पिच पॉइंट निकालेंगे तो पिच पॉइंट अगर मैं P कंसीडर करता हूं तो पिच पॉइंट से लेकर पिच पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है पिच पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्टेंस, ये तो ऑब्वियसली 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितना होगा, पिच पॉइंट इज अ बिग 0, क्या होगा भाई, बड़ा वाला 0। तो इसके बाद हम कभी भी जब भी न्यूमेरिकल में आएगा कि भाई पिच पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास सीधा लिख दीजिए इट इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट पिच पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो भाई ये जो थर्ड बात हमें कैलकुलेट करना था ये भी हमें मिल चुका है, इसे भी निकाल दो। अब प्रॉब्लम ने खुद को आगे बढ़ाया है, ऑल्सो also find the angle turned through which period turns while any error is having contact। तो इस न्यूमेरिकल को अगर इसकी बात को समझना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। मैं डायरेक्ट जाता हूं कि एंगल टर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेगा आर्क ऑफ कांटेक्ट, और आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। पर लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस
लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है, उसे जब हम डिवाइड करेंगे cos ऑफ फाई से तो हमें मिलता है आर्क ऑफ कांटेक्ट, है ना। उसे जब हम डिवाइड करेंगे cos ऑफ फाई से तो हमें मिलता है आर्क ऑफ कांटेक्ट, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाथ ऑफ अप्रोच हमें मिला है 12.65, सो 12.65 mm प्लस ऑफ पाथ ऑफ मिसेस मिला है हमें 11.5 mm अपॉन cos ऑफ फाई की वैल्यू cos ऑफ 20 डिग्री, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर्क ऑफ कांटेक्ट, और जो आर्क ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू 25.7 mm, दैट इज 25.7 mm, ये हमें मिला है आर्क ऑफ कांटेक्ट। अब आर्क ऑफ कांटेक्ट हम रिलेशन यूज करेंगे। आर्क ऑफ कांटेक्ट हमें ये मालूम है कि आर्क ऑफ कांटेक्ट मतलब कि आर्क लेंथ है ना, आर्क ऑफ लेंथ। इस कंसेप्ट को पीछे हमने बहुत अच्छे से समझाया है। अब ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होगी कि मैं उसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बढ़ाते जाऊँ। इस पहले वाला, अगर इससे जस्ट एक लेक्चर पहले वाला आप वीडियो देख लें तो उसके अंदर ये कंसेप्ट समझेगा। इवन जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी पर गियर की, उसके अंदर भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हमें छोटी क्लासेस का एक रिलेशन मालूम है कि आर्क लेंथ L जो होता है दैट इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। L इक्वल टू आर थीटा। अब जो ये L है वही तो हमारा आर्क लेंथ है, हमें चाहिए थीटा, है ना। हमें एंगल टर्न बाय द पीनियन, इसलिए मैंने स्मॉल आर दिया। क्यों? क्योंकि हमें आर्क लेंथ किसकी चाहिए थी? पीनियन की। हमें एंगल टर्न पीनियन का चाहिए, है ना। एंगल थ्रू व्हिच द पीनियन टर्न, एंगेजमेंट के वक्त पीनियन कितना एंगल टर्न होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू L अपॉन स्मॉल आर। अब L जो है वो हमारा आर्क लेंथ के इक्वल होगा, दैट इज 25.7 अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है भाई? ये तो हमने कैलकुलेट किया था। स्मॉल आर कितना होगा? रेडियस 50 mm निकाला था हमने, 50, राइट। और इससे हमें ये जो फॉर्मूला है ये हमारा एंगल हमेशा रेडियन में देगा, राइट। तो हमें डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तब हमें मिलेगा एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा होगा एंगल टर्न बाय द पीनियन, एंड द कैलकुलेशन सेज इट विल बी इक्वल टू 29.45 ये कैलकुलेशन कितना आएगा भाई? 29.45 mm। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ रुकेंगे और अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। So till then, have a good day.